Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे सो दैट यू नेवर मिस द इंपॉर्टेंट पार्ट. देयर विल बी 50 to 55 लेक्चर्स ऑफ 30 to 35 मिनट्स ईच. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊं वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र. तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं अपनी सीरीज़ का लास्ट चैप्टर 32, दैट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास. इसके बाद अपेंडाइज पढ़ेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है वो बस, बाकी इसके बाद आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, वर्किंग क्लास के मूवमेंट्स पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, क्या क्या किया है उन्होंने. सो लेट्स बिगिन. द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century heralded the entry of modern industry into India. The thousands of hands employed in construction of railway were harboring of the northern were harbingers of the modern Indian working class. Further, industrialization came with the development of ancillary industries along with the railways. The coal industry developed fast and employed a large working force. Then came the cotton and the jute industry. The Indian working class suffered from the same kind of exploitation witnessed during industrialization of Europe, right? And the rest of the West, such as low wages, long working hours. क्या क्या प्रॉब्लम थे? लो वेजेस था, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनहाइजीनिक एंड हजार्डियस वर्किंग कंडीशन, employment of children, employment of child labor, and the absence of basic amenities. The presence of colonialism in India gave a distinctive touch to the Indian working class movement. The Indian working class had to face two basic antagonistic forces, an imperialistic force and an economic exploitation at the hands of both foreign and native capitalist classes. Under the circumstances, the Indian working class movement became intertwined with the political struggle for national emancipation. तो स्टार्ट कैसे होता है अर्ली एफर्ट से. द अर्ली नेशनलिस्ट, स्पेशली द मॉडरेट्स, वर indifferent to the labor cause, differentiated between labor in the Indian owned factories and those in the British owned factories, believed the labor legislation would affect the competitive edge enjoyed by the Indian owned industries, did not want a division in the movement on the basis of classes, did not support the factory assets of 1881 and 1891 for these reasons. फैक्ट्री एक्ट्स को उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला. ठीक है, अब इसलिए इसके आगे पढ़ेंगे. दस अर्लियर अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन. ये सारी रीजन, मतलब ये सारे बैकग्राउंड था. ठीक है ना, कि कैसे मॉडरेट्स ने इनको ज़्यादा सपोर्ट किया नहीं. फिर दस अर्लियर अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स वर इन द नेचर ऑफ philanthropic effort which were isolated, sporadic and aimed at specific local grievances. 1870 में शशिपदा बनर्जी स्टार्टेड द वर्किंग्समैन क्लब एंड न्यूज़पेपर भारत श्रमजीवी. ठीक है, न्यूज़पेपर भारत श्रमजीवी और शशिपदा बनर्जी ने खोला था 1870 में वर्किंग मैंस क्लब एंड न्यूज़पेपर भारत श्रमजीवी. ठीक है, 1878 में सोराबजी सपूरजी बंगाली ट्राइड टू गेट अ बिल प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशंस टू लेबर, passed in the Bombay Legislative Council. 1880 में Narayan Meghaji Lokhande started the newspaper Deen Bandhu and set up the Bombay Mill and Mill Hands Association. 1899 में the first strike by Great Indian Peninsular Railways took place and it got widespread support. Tilak, Kesari and Maratha had been campaigning for the strike for months. There were many prominent nationalist leaders like Bipin Chandra Pal Ji, Subramaniam Iyer, who defended better conditions for the workers and other pro-labor reformers. ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया. ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, बट देन अगेन मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, ईयर्स ऐड किए हुए हैं. जैसे
NM लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे स्टार्टेड द न्यूज़पेपर दीनबंधु। तो NM लोखंडे के बारे में यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। ऑफ कोर्स अगेन शशि प्रताप बनर्जी के बारे में एमपीपीएससी वगैरह, एमपीपीएससी यानी स्टेट पीएससी वगैरह में पूछा रहता है। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू। ड्यूरिंग स्वदेशी अपसर्ज, workers participated in wider political issues. Strikes were organized by Ashwani Kumar Banerjee, Prabhat Kumar Roy Chaudhary, Premtosh Bose and अपूर्वा कुमार घोष। ठीक है ना, स्वदेशी के टाइम पे कौन कैसे कैसे अपसर्ज हो रहे थे, ठीक है। These strikes were organized in government, press, railways and jute industry. There were attempts to form trade unions, but these were not very successful. Subramaniam Siva and Chidambaram Pillai led strikes in Tuticorin and Tirunelveli and were arrested। ठीक है ना, इन लोगों ने स्ट्राइक ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज करी थी, तो इन लोग को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, दे आर द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। ठीक है, द बिगेस्ट स्ट्राइक ऑफ द पीरियड वॉज ऑर्गेनाइज आफ्टर तिलक अरेस्ट एंड ट्रायल ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर। ठीक है, द वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ ब्रॉट अ राइज इन exports, soaring price, massive profiteering, opportunities for the industrialists, but very low wages for the workers. This led to discontent among workers. The emergence of Gandhi led to the broad-based national movement, and the emphasis was placed on the mobilization of the workers and peasants for national cause. A need was felt for organization of workers in trade unions. International events like establishment of Socialist Republic in Soviet Union, formation of Comintern and setting up of International Labour Organization lent a new dimension to the movement of the working class in India. Then we shall talk about AITUC, that is All India Trade Union Congress. Very important from exam perspective. Multiple time state PSCs वगैरह में पूछा जा चुका है, and UPSC के लिए भी बहुत important है। The All India Trade Union Congress. The All India Trade Union Congress was founded in October 31st, 1920. ठीक है, कब बनी थी? October 31st, 1920. The Indian National Congress President for the year Lala Rajpat Rai was elected as the first president. कौन थे? First president कौन थे? लाला लाजपत राय। एंड दीवान चमन लाल वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए, लाला लाजपत राय वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट और दीवान चमन लाल वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी। लाला लाजपत राय वॉज द फर्स्ट टू लिंक कैपिटलिज्म विथ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म एंड मिलिटेरियनिज्म आर द ट्विन चिल्ड्रंस ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, लाला लाजपत राय ने ऐसा बोला था। The prominent Congress and Swarajist leaders, C.R. Das presided over the third and the fourth session of the AITUC. The Gaya session of the Congress in 1922 welcomed the formation of AITUC. ठीक है, कौन सा सेशन में? गया सेशन में। ठीक है ना, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था, वेलकम किया था AITUC का फॉर्मेशन, एंड a committee was formed to assist it. C.R. Das advocated the Congress should take up the worker and peasant cause and incorporate them in struggle for Swaraj, or else they would get isolated from the movement. Other leaders who kept close contact with AITUC included Nehru, Subhas Bose, C.F. Andrew, J.M. Sen Gupta, Satyamurthy, V.V. Giri and Sarojini Naidu. In the beginning, AITUC was influenced by social democratic idea of British Labour Party. The Gandhian philosophy of non-violence, trusteeship and class collaboration had great influence on movement. Gandhi helped organize the Ahmedabad Textile Labour Association. Right? Okay, तो गांधी जी ने क्या ऑर्गेनाइज किया था? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1980, है ना, एंड हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना, एंड थ्रू अ प्रोटेस्ट सिक्योर्ड 27.5% वेज हाइक। लेटर द आर्बिट्रेशन अवॉर्डेड एंश्योर्ड 30% रेज। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अहमदाबाद खेड़ा और वगैरह में जब किया था गांधी जी ने मूवमेंट, उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926। द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन एज लीगल एसोसिएशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। laid on condition for registration and regulation of trade union activities, and secured immunity both civil and criminal for trade union from prosecution of legitimate activities, but put some restriction on their political activities. ठीक है, फिर लेट 1920s में क्या हो रहा था? A strong communist influence on the government lent a militant and revolutionary content to it. In 1928, there was a 6-month-long strike in Bombay Textile Mill led by Girni Kamgar Union. The whole of 1928 witnessed the unprecedented industrial unrest. The period saw a crystallization of various communist groups with leaders like S.A. Dange, Muzaffar Ahmad, P.C. Joshi, Sohan Singh Joshi, etc. Alarmed at the increasing strength of the trade union movement under extremist influence, the government resorted to legislative restrictions. It passed the Public Safety Ordinance 1929 and Trade Dispute Act of 1929.
ठीक है। पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट से यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द टीडीए ऑफ 1929 मेड कंपलसरी द अपॉइंटमेंट ऑफ, देखिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, कंपलसरी द अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड कंसल्टेशन बोर्ड फॉर सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मेड इलीगल द स्ट्राइक इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक post, railway, water, electricity, unless each individual worker planning to go on strike gave on an advance notice for a month to the administration, and forbade trade union activities of coercive and or purely political nature and even sympathetic strikes। ठीक है ना, तो ये तीन प्रोविजंस थे। अब पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड। ठीक है ना, और ये क्योंकि हम पढ़ भी चुके हैं वैसे तो। मार्च 1929 द गवर्नमेंट अरेस्टेड 31 लेबर्स लीडर, देखिए the government arrested 31 labor leaders and the 3.5-year trial resulted in the conviction of Muzaffar Ahmad, S.A. Dange, Jogelkar, Phillips Spart, Ben Bradley, Shaukat Usmani and others। The trial got worldwide publicity but weakened the working class movement। कौन कौन एसोसिएट थे? ये सब लोग बेसिकली ट्रायल चलाते हैं इन पे। द वर्कर पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग 1930 इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बट आफ्टर 1931 देयर वॉज अ डिप इन द वर्किंग क्लास मूवमेंट बिकॉज, देखिए आफ्टर 1931 देयर वॉज अ डिप इन वर्किंग क्लास मूवमेंट। डायरेक्ट पूछ ले कभी तो, ठीक है ना, ओके। बिकॉज ऑफ अ स्प्लिट इन 1931 इन विच द corporatist trend led by N.M. Joshi broke away from AITUC to set up the All India Trade Union Federation। In 1935 the communists rejoined the AITUC। देखिए communists rejoined the AITUC। Now the left front consisted of communist, Congress, socialist and leftist nationalists like Nehru and Subhash। Under Congress ministries during 1937 elections, the AITUC had supported the Congress candidate. The Congress governments in province gave a fillip to the trade union activities. The Congress ministries were generally sympathetic to the worker demands. Many legislation favorable to the workers were passed। अब पढ़ते हैं ये ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ। इनिशियली द वर्कर अपोज द वॉर बट आफ्टर 1941 when the Russian joined the war on behalf of the Allies, the communists described the war as people's war and supported it। The communists disassociated themselves from the Quit India movement। A policy of industrial peace was advocated by the communists। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कम्युनिस्ट डिसोसिएटेड देमसेल्फ फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। Now, in the period of 1945 to 1947, workers participated actively in the post-war national upsurge। In 1945, the dock worker of Bombay, Calcutta refused to load ships taking supplies to the warring troops of Indonesia। During 1946, the workers went on strike in support of the naval rating। During the last year of the foreign rule, there were strikes by workers of post, railway and many other establishments। ठीक है, after independence, the working class movement came to be associated with the various political ideologies। Of course, अब ये चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। इसकी समरी में कुछ नहीं है। अर्ली एफर्ट्स पढ़े हमने ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर, एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पर इस चैप्टर के साथ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम बाय राजीव अय्यर का अंत होता है, चैप्टर्स का अंत होता है बेसिकली। यहाँ पर हमने सारी बुक अच्छे से कवर कर ली है, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हाईलाइट कर दिए हैं, राइट। सब कुछ PYQ से एसोसिएट करके बताया गया है आपको। आपका काम यह है कि इन वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से हर पॉइंट हाईलाइट करें, देन रिवीजन में भी इन वीडियोस का एक बार इस्तेमाल करें। रिवीजन जब आप इन वीडियो से करेंगे आप स्पीड ज़रूर बढ़ाएंगे। नॉर्मली भी स्पीड आपको 1.25x रखनी है, बट देन अगेन जब आप अगली बार पढ़ें तो 1.5x पे पढ़ने की कोशिश करें। बहुत आसानी से आपको जल्दी जल्दी कवर हो जाएगी ये बुक। ये सारे वीडियोस देखने के बाद आई एम वेरी श्योर कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट छूटेगा नहीं, क्योंकि हमने उससे बताया हुआ है जिस भी इंपॉर्टेंट पार्ट से प्रीवियस क्वेश्चन बना हुआ है, तो लगभग हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिए हैं, राइट। तो बस अब इसका एक लास्ट पार्ट बचता है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये बुक मैं जानता हूँ कि आफ्टर नेहरू भी पढ़ाई गई है, इंडिया इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, है ना, न्यू वन नेशन। ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला काम है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट। ये मॉडर्न इंडिया, यहाँ पर बेसिकली मॉडर्न इंडिया का जो कोर सिलेबस है जहाँ से क्वेश्चन आता है वो खत्म हो चुका है, राइट। इसके बाद अलग है, इसके बाद सिर्फ अब अपन को पढ़ना है अपेंडाइस, राइट। तो डायरेक्टली अब हम अपेंडाइस पे मूव करेंगे। अपेंडाइस में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो पहले पढ़ चुके हैं जैसे मैं बताया वो सब लिखा हुआ है बस कंपाइलेशन फॉर्म में। अपेंडाइस में क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस वगैरह आपको इजीली सॉर्ट कर सकते हो आप, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं वो बताए जाते हैं। अपेंडाइस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले अब डायरेक्टली हम जंप करेंगे अपेंडाइस पे, राइट। वेट,
ओके, सो ये है अपेंडाइसिस। इस अपेंडाइस में हम अगर मैं बता देता हूँ, सारा कुछ जो पढ़ाने वाले हैं इस अपेंडाइस में वो सब हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं पहले भी। पूरे इस पूरा ये अपेंडाइसिस में जितना भी हुआ है वो पहले कहीं ना कहीं अलग अलग पार्ट्स पे कवर हो चुका है, बट इट इज़ जस्ट ए कंपाइलेशन। सो वी आर गोइंग टू रीड बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। देन अगेन आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पर हमें कोई भी प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इन सारे पार्ट से या फिर जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाने वाला है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सारा का सारा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। आप मेरे से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, आप खुद से भी उम्मीद मत रखिए कि इसमें हाईलाइट करके कुछ काट के पढ़ लेंगे। बहुत कम सेक्शन ऐसा है, थोड़ा बहुत ही सेक्शन ऐसा है जैसे वुमेन फ्रीडम फाइटर्स वगैरह वाला, और कि जो हाईलाइट करने की ज़रूरत पड़े। सारा पार्ट बहुत क्रिस्प फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आपको बिल्कुल वैसे का वैसा याद कर लेना है ना। इसको और शॉर्ट करने की कोशिश मत करिएगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं हाईलाइट करूँगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं होगी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे एनुअल सेशंस वगैरह वहाँ वैसे भी क्रिस्प पॉइंट में दिया हुआ है, न्यूज़ पेपर इन जनरल पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा और शॉर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सारे डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ठीक है ना। आपको अच्छे से पहले ही बता देता हूँ, ऑल क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड, ठीक है। वेट, ठीक है, आप ये ध्यान रखिए कि ऑल PYQs आर डिस्कस्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे PYQ से रिलेटेड मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको। तो यहाँ पर ये आपका एक रिवीजन ही है, इसको आप रिवीजन जैसा समझिए, रिवीजन जैसा फटाफट पढ़िए और रिवीजन जैसा ही याद करिएगा, ठीक है ना। आपको इसमें अलग से एफर्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है जस्ट बिकॉज कि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट है, छांटा हुआ है पूरी बुक से, ठीक है। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें आप याद रखिए, आपको काम में आएंगी, ठीक है ना। एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अब देन अगेन अब इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत थोड़ी सी जगह है जहाँ पे हाईलाइट करने की जरूरत है, बाकी बहुत पूरा ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन देयर रूल। फिर पढ़ेंगे पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद वेरियस फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर पढ़ेंगे हम वुमेन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। फिर पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस एनुअल सेशंस के बारे में, फेमस ट्रायल्स ऑफ द नेशनल पीरियड के बारे में, देन कास्ट मूवमेंट्स के बारे में, एंड देन न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स के बारे में, ठीक है ना। बहुत सारा पार्ट डायरेक्ट रहेगा, तो अलग से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत फैक्चुअल है। हर पार्ट हर एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। आप उसी को वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक रिवीजन पार्ट है, उसको वैसे कंटिन्यू करते हैं। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया, सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड इन देयर रूल, ठीक है। डायरेक्ट जंप करेंगे इस पार्ट पे, वेट। सो गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया, सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन देयर रूल, ठीक है। तो एक एक करके गवर्नर जनरल सारे हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले गवर्नर जनरल में आएंगे कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 85 तक। रेगुलेटिंग एक्ट, वेट, इसको थोड़ा ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इस पूरे में बस एक वन लाइनर में लिखा हुआ है कि इनने क्या क्या किया, इनके इस टाइम पे क्या क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, वैसे ही पढ़ना है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बार बार हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा इस पार्ट में, इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 85 तक रहे। तो फर्स्टली क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, एक्ट ऑफ 1781 अंडर विच द पावर ऑफ जुरिसडिक्शन बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा वर क्लियरली डिवाइडेड। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, फिर रोहिला वॉर ऑफ 1774, द फर्स्ट मराठा वॉर ऑफ 1775 to 82 एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782 इनके रिजीम के टाइम पे हुआ। सेकंड मैसूर वॉर हुआ था 1780 से 84 के बीच में, हैदर अली याद होंगे आपको, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद चेस सिंह एंड महाराजा ऑफ बेरार विच लेड टू हेस्टिंग सब्सिक्वेंट इम्पीचमेंट इन इंग्लैंड, फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इनके टाइम पीरियड के टाइम पे हुआ था, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट है इनके पार्ट, ओके। फिर पढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक रहे। आप ये टाइमलाइन के हिसाब से है ना सारे, देखें 73 से 85 तक रहे पहले, है ना, क्योंकि 73 के ये एक्ट में था ना, रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएंगे, फिर आगे चल के इनको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया, फिर वाइसरॉय किया 33 एंड 58 में रिस्पेक्टिवली, राइट। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक रहे, याद रखिएगा हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस,
इनके अंदर वो थर्ड मैसूर वॉर हुआ 1790 से 92, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुई। कॉर्नवालिस कोड आया 1793 का, इनकॉर्पोरेटिंग सेवरल जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल जुरिस्डिक्शन। फिर आया परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793 इनके अंदर, और फिर यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इनके अंदर। फिर आए सर जॉन शोर ऑफ 1793 से 1798 तक रहे। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इनके अंदर पास हुआ था, एंड बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निजाम एंड मराठा इन 1795 इनके अंदर हुआ था। फिर आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798 से 1805 तक। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन 1798 इन्हीं के अंदर हुआ था। फर्स्ट अलायंस विद निजाम ऑफ हैदराबाद, ऑफ कोर्स। फोर्थ मैसूर वॉर हुआ था 1799 का। सेकंड मराठा वॉर 1803 से 1805 तक। देन टुक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर 1799 में, एंड सूरत 1800 में, कार्नाटिक इन 1801 में। फिर ट्रीटी ऑफ बसीन भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इनके कार्यकाल के टाइम पर। फिर आए सर जॉन बार्लो, ठीक है, ज़्यादा इनका वो सुनने में नहीं आता क्योंकि वेलोर मीटिंग बस हुई थी इनके टाइम पे, बहुत मेजर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। वेलोर मीटिंग वन ऑफ द फेमस इवेंट थी। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 07 तक, ठीक है। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आए, फिर लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से लेकर 13 तक। ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है इनके टाइम पीरियड में, 1809 में जो हुई थी। फिर आए लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 23 तक। इनके टाइम पे हुआ एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से 1816 तक चला, एंड ट्रीटी ऑफ संगावली 1816 तक। थर्ड मराठा वॉर हुआ 1817 से 19 तक, एंड डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी, क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में। स्ट्राइफ विथ पिंडारीज एंड ट्रीटी विथ सिंधियाज, ठीक है। स्ट्राइफ विथ पिंडारीज कब 1817 से 1818 के टाइम पर, सेम पीरियड के टाइम पे ट्रीटी ऑफ सिंधियाज हुई, ट्रीटी विथ सिंधियाज हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैयतवारी सिस्टम बाय थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास, ये इनके टाइम पे हुई थी। हेस्टिंग्स के टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रैयतवारी सिस्टम किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे आया था, ठीक है ना। ओके, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 तक रहे। तो फर्स्ट बर्मीज वॉर इनके टाइम पे हुआ, और कैप्चर ऑफ भरतपुर भी इनके टाइम पे हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1828 से 35 तक रहे। अबॉलिशन ऑफ सती एंड अदर क्रूअल राइट्स, सप्रेशन ऑफ तूगीज, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, रेजोल्यूशन ऑफ 1835, एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन द ऑफिशियल लैंग्वेज, एनेक्सेशन ऑफ मैसूर, कूर्ग एंड सेंट्रल चचर, Treaty of Perpetual Friendship with Ranjit Singh, abolition of the Provincial Court of Appeal and circuit set up by the Cornwallis, appointment of Commissioners of Revenue and Circuit, ठीक है ना। इनके टाइम पे ये सारा इंपॉर्टेंट काम हुआ था। फिर लॉर्ड मेलकाल्फ, लिबरेटर ऑफ प्रेस, ठीक है। न्यू प्रेस लॉ रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस इन इंडिया, ऑफ कोर्स इनके टाइम पे बहुत मेजर काम है ये। फिर आए लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1402 तक रहे। फर्स्ट अफगान वॉर 1838-42 तक इनके टाइम पे हुआ। डेथ ऑफ रंजीत सिंह भी इन्हीं के टाइम पे 39 में हुई। लॉर्ड एलिंग्रो 1842 से 44 तक, एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड वॉर विद ग्वालियर। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 48 तक रहे, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 था, एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846। सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग अबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस, ठीक है। फिर आए लॉर्ड डलहाउजी 1848 से 56 तक। सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ 1848 से 49 का, एंड एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ। एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा और पीगू 1852 तक। इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड एनेक्सेशन ऑफ सतारा इन 1848। जैतपुर एंड संबलपुर इन 1849। उदयपुर इन 1852। झांसी 1853। नागपुर 1854 एंड अवध इन 1856। फिर आया वुड्स डिस्पैच आया था। वुड्स चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे, कंट्रोल एजुकेशन डिस्पैच, वुड्स एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854, एंड द ओपनिंग ऑफ एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, किसके अंदर? डलहाउसी के अंदर। ये बहुत मेजर इवेंट्स है जो हुए हैं डलहाउसी के अंदर, जैसे वुड्स डिस्पैच आया था, ठीक है ना। 48 से 56 तक वही थे, ठीक है। 54 में इसलिए आ गया। और रेलवे मिनट्स इन 1853, एंड लेइंग डाउन ऑफ द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने इन 1853। फिर आया टेलीग्राफ, 4000 माइल्स ऑफ टेलीग्राफ लाइन्स वर कनेक्टिंग कैलकाटा एंड बॉम्बे, मद्रास एंड पेशावर, एंड पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 रिफॉर्म्स इनके अंदर आए। गेंजिस या फिर गंगा कैनाल डिक्लेयर्ड ओपन 1854 में। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन एवरी प्रोविंस, एंड विडो रीमैरिज एक्ट भी 1856 में इनके अंदर है। लॉर्ड डलहाउसी के अंदर बहुत सारा काम हुआ, ठीक है ना, समझ गए। लॉर्ड कैनिंग, अच्छा बुरा सारा ही टाइप का, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग इन 1856, जैसे अच्छा मतलब विडो रीमैरिज एक्ट आया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57 तक रहे, बट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज इनके टाइम पे हुई, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे इन 1857। और फिर बहुत ही मेजर इवेंट रिवॉल्ट ऑफ 1857 लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ।
फिर आता है वाइसरॉयज का पीरियड, क्योंकि 1858 का एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय बोलने लगे थे, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया था जो, ठीक है। फिर हुई व्हाइट म्यूटनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 भी इनके टाइम पे हुआ। फिर आया लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 तक रहे, और फिर वहाबी मूवमेंट एक मेजर इवेंट था इनके टाइम पे। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक रहे। फिर इनके अंदर हुआ बर्मा वॉर 1865 में, सेटिंग ऑफ द हाई कोर्ट एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास 1865 में, ठीक है। फिर आया लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने क्या किया 1869 से 72 के बीच में, ओपनिंग ऑफ द राजकोट कॉलेज एंड काठियावाड़ एंड द मेयोज कॉलेज एंड अजमेर फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके टाइम पे हुआ, इतने पहले हो गया था, ठीक है ना, लॉर्ड मेयो के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवे इन्हीं के टाइम पे हुआ था। फिर आया लॉर्ड नॉर्थब्रूक 1827 से 76 तक। विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1827, ट्रायल ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड कूका मूवमेंट इन पंजाब। फिर आया लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन 1876 से लेकर 1880 तक का पीरियड रहा इनका। फेमाइन ऑफ 1876 अफेक्टिंग मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। अपॉइंटमेंट ऑफ फेमाइन कमीशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचर्ड स्ट्रेची 1878 में। रॉयल टाइटल एक्ट ऑफ 1876, क्वीन विक्टोरिया अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ केसरे हिंद एंड क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 लिटन के टाइम पे पास हुआ था, ठीक है, रिपन ने इसको हटा दिया था आगे चल के। द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 इनके टाइम पे है। सेकंड अफगान वॉर ऑफ 1878 से 1880 तक इन्हीं के टाइम पे हुआ। फिर है लॉर्ड रिपन रहे 1880 से 84 तक। रिपील ऑफ वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जैसे कि बता चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 टू इम्प्रूव लेबर कंडीशन। The continuation of financial decentralization, government resolution on local self-government in 1882, appointment of education commission under chairmanship of Sir William Hunter, and the Ilford Bill controversy भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी 1883 से 84 तक। रिटेंशन ऑफ मैसूर भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। किन के टाइम पे हुआ भाई? लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है ना। ओके, नाउ पढ़ते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक रहे। इनके टाइम पे थर्ड बर्मीज वॉर हुआ था 1885 से 86 के टाइम का। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इन्हीं के टाइम पे हुई, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 तक रहे, ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन फैक्ट्रीज एक्ट इनके अंदर आया। कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इनटू इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 भी इन्हीं के टाइम पे आया था। सेटिंग अप ऑफ द ड्यूरेंट कमीशन 1893 टू डिफाइन द ड्यूरेंट लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, नाउ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ द लाइन टचेज द इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है ना। इन्हीं ने कमीशन, ड्यूरेंट लाइन की कमीशन सेटअप करी थी, ठीक है ना, इन्हीं के टाइम पे हुई थी बेसिकली। लॉर्ड एलिंग 2, ठीक है, अब लॉर्ड एलिंगटन पहले आ चुके थे, याद रखिएगा। 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स असैसिनेटेड बाय चापिकर ब्रदर्स इन 1897, ठीक है। अब देखते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। ऑफ कोर्स ही वाज वेरी फेमस और इनफेमस यू से। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन 1902 अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर to review the political administration. Appointment of University Commission and passing of Indian University Act of 1904. Establishment of Department of Commerce and Industries. Calcutta Corporation Act of 1899. Ancient Monument Preservation Act of 1904. Participation in Bengal in 1905. Partition of Bengal in 1905. Curzon-Kitchener Controversy. Young Husbands Mission to Tibet in 1904 इनके ही टाइम पे हुआ। अब पढ़ते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड, ठीक है ना। ओके, लॉर्ड मिंटो सेकंड आए 1905 से 1910 के बीच में। पॉपुलराइजेशन ऑफ एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट। स्प्लिट इन कांग्रेस इन द एनुअल सेशन ऑफ 1907 इन सूरत। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग बाय आगा खान इन 1906। फिर आए लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916 के बीच में। क्रिएशन ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी लाइक बॉम्बे एंड मद्रास इन 1911। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन 1911। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा इन 1915 बाय मदन मोहन मालवीय एंड कोरोनेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज V हेल्ड इन दिल्ली इन 1911। लॉर्ड हार्डिंग के अंदर हुआ था, ठीक है। फिर आए लॉर्ड चेम्सवर्थ, ये रहे 1916 से 21 के बीच में। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग बाय एनी बेसन एंड तिलक इन 1916 बनी इनके टाइम पे। लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस हुआ 1916 में। लखनऊ पैक्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग 1916 में। फाउंडेशन ऑफ साबरमती आश्रम इन 1916 आफ्टर गांधीज रिटर्न। लॉन्च ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन 1916। खेड़ा सत्याग्रह इन 1918 एंड सत्याग्रह एट अहमदाबाद इन 1918। मॉन्टेग्यू गस्ट डिक्लेरेशन 1917 में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में पास हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया। रॉलेट एक्ट आया, उसी के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ
लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन खिलाफत मूवमेंट साथ में हो 1920s के टाइम पे, फाउंडेशन ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी एट पूना इन 1916 एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेटलर कमीशन 1970 फॉर द रिफॉर्म्स इन एजुकेशन पॉलिसी। आई डेथ ऑफ तिलक जी की डेथ हो गई थी 18 अगस्त 1920 में। अपॉइंटमेंट ऑफ एसपी सिन्हा एज द गवर्नर ऑफ बिहार, द फर्स्ट इंडियन टू बिकम गवर्नर थे एसपी सिन्हा। ये सब किसी के टाइम पे, चेम्सवर्थ के टाइम पे हुआ था 1916-21 के बीच में। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक के टाइम पे, चौरी चौरा इंसिडेंट इनके टाइम पे बहुत फेमस है। February 5th 1922 एंड द सब्सिक्वेंट विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मोपला रिबेलियन इन केरला इन 1921, रिपील ऑफ द प्रेस एक्ट ऑफ 1910 एंड रोलेक्ट एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एंड अबॉलिशन ऑफ कॉटन एक्साइज, कम्युनल राइट्स इन मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, आरवी एंड कलकत्ता, काकोरी रेन रॉबरी इन 1925, मर्डर ऑफ स्वामी श्रद्धानंद 1926 में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, and decision to hold simultaneous examination for the ICS both in Delhi and London with the effects from 1923 इन्हीं के टाइम पे। फिर आए लॉर्ड इरविन 1926 से 31 के बीच में थे वो। विजिट, अब देखिए लॉर्ड इरविन के में भी बहुत कुछ हुआ है, याद रखेंगे। विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया 1928 एंड बॉयकॉट ऑफ द कमीशन बाय इंडियंस। An all-party conference held at Lucknow 1928 for suggestion of future constitution of India, the report of which was called the Nehru Report or the Nehru Constitution। ये सब हम पढ़ नहीं चुके हैं क्या? सारा पढ़ चुके हैं, एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ा हुआ है ये सब, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द हार्ट कोर्ट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन 1927 में, मर्डर ऑफ सौंडर हुआ था, ये भी पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं। द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट लाहौर, ये एक प्रकार का समरी है, ठीक है। लाहौर बॉम्ब ब्लास्ट इन असेंबली हॉल इन दिल्ली 1929 में, द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड द डेथ ऑफ जतिन दास आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड हंगर स्ट्राइक इन 1929 एंड बॉम्ब एक्सीडेंट इन ट्रेन इन दिल्ली 1929। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 का पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन आया। डांडी मार्च के लिए स्टार्ट हुई बाय गांधी टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मार्च 12 1930 में। Deepavali declaration by Lord Irwin in 1929, boycott of the first round table conference in 1930, Gandhi-Irwin Pact in 1931 and suspension of civil disobedience movement। फिर आया लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है। लॉर्ड विलिंगडन आए 1931 से लेकर 36 तक, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनके टाइम पे हुई एंड ए फेलियर ऑफ कॉन्फ्रेंस, रिजम्पशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद हुआ अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड, ठीक है, बहुत ब्लैक स्पॉट है वो भी एक हिस्ट्री का, है ना। अब अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड 1932 में, अंडर विच द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट वाज सेट अप, fast into death by Gandhi in Yerrawada prison, broken after Pune Pact in 1932, third round table conference in 1932, launch of individual civil disobedience movement in 1933, to Government of India Act in 1935 आया, establishment of All India Kisan Sabha in 1936 and Congress Socialist Party by Acharya Narendra Dev and Jayaprakash Narayan in 1934, Burma separated from India in 1935। फिर आया लॉर्ड लिनलिथ को 36 से लेके 44 तक, इंपॉर्टेंट पीरियड है इनका भी। तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे कि 1936 से 37 के बीच में। कांग्रेस अटेंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी, रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन 1939, सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फॉर द 51st सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1938, रेजिग्नेशन ऑफ द बोस इन 1939 एंड द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ मार्च 1940 बाय द मुस्लिम लीग, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, इन्हीं के टाइम पे। अगस्त ऑफ 1940 बाय द वाइस रॉय इन क्रिटिसिज्म by Congress and endorsement by the Muslim League, Winston Churchill elected Prime Minister of England 1940 में, escape the Subhash Chandra Bose escape minister, ठीक है। Winston Churchill elected Prime Minister of England in 1940, फिर escape of Subhash Chandra Bose हुआ from India in 1941 and organization of Indian National Army, ठीक है। क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स प्लान आया टू ऑफर डोमिनेंट स्टेटस टू इंडिया एंड सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट्स रिजेक्शन बाय द कांग्रेस, पासिंग आउट ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन बाय द कांग्रेस इन 1942, आउटब्रेक ऑफ अगस्त रेवोल्यूशन एंड रिवॉल्ट ऑफ 1942 आफ्टर द अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स, डिवाइड एंड क्विट स्लोगन एट द कराची सेशन 1944 ऑफ द मुस्लिम लीग बोले गए, ठीक है। फिर आए लॉर्ड वेवल, ठीक है, लॉर्ड वेवल आए। उसके बाद आए लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड वेवल ने क्या किया है भाई, लॉर्ड वेवल के टाइम पे क्या हुआ है, सी राजगोपालाचारी फार्मूला, CR फार्मूला जिसको हम बोलते थे, CR फार्मूला 1944 आया। फेलियर ऑफ गांधी जिन्ना टॉक्स हुआ 1944 में। वेवल प्लान लेट द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1942
एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 में, प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन इन 1946 एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कांग्रेस, ऑब्जर्वेंस ऑफ द डायरेक्ट एक्शन अगस्त 16 1946 में, ऑल्सो नोन एज द 1946 कैलकाटा किलिंग बाय द मुस्लिम लीग, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट बाय कांग्रेस इन सितंबर 1946 में हुआ, एन अनाउंसमेंट ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लीमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ऑन फरवरी 20th 1947 को अनाउंस कर दिया गया फ्रीडम। ठीक है, अब ये फिर आए लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, फ्रीडम के टर्म्स डिसाइड करने के लिए। तो जून 3 प्लान आया इनके टाइम पे, जून 3 1947 अनाउंस्ड हुआ जून 3 प्लान का। इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ 2 बाउंड्री कमीशन अंडर सर साइरल रेडक्लिफ फ्रॉम द पार्टीशन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। ठीक है, यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, बेसिकली सारे गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज वाला पार्ट। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।